Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumars, and in this series we are doing the all the chapters of your science subject. And in this series, our first chapter is crop production and management. In the previous videos, we have discussed about agricultural practices and the tools which are used in agricultural practices. ठीक है ना बेटा? We also we have also studied about different steps for producing a crop. Like the first step is preparation of soil, after that sowing, after that we have to add manure and fertilizers for the proper growth of our crop. The next step is irrigation. Irrigation at regular interval of time is necessary for any crop to give the best results. After that, when meanwhile in the time when the crop was producing, when the crop is growing, we should have protected from weeds. So what are weeds? We have discussed in the video. And the last step we have discussed is harvesting. ठीक है ना बेटा? We have also differentiates or categorize the crops on the basis of the season. The crops which are grown or which are sowed in the rainy season are known as kharif crops, and the crops which are grown in winters, that is known as rabi crop. Wheat, gehu is known as rabi crop, while paddy, dhan, chawal is known as kharif crop. Clear? In the preparation of soil, we have discussed that before sowing, before giving seed to the ground, to the field, we have to prepare it for it. ठीक है ना? We have to prepare it, like we have to do different steps like loosening of soil. ठीक है ना? Why do we do loosening of soils? ठीक है ना? It helps earthworms, which are friends of the farmer, to live or to grow in the field. What do earthworm do? They produce small holes inside the field, which makes able the ground to breathe, to exchange gases between environment and the soil. Clear? ये सभी चीज़ें हमने देखी थी. After that, we have discussed that the method of loosening of soil is known as ploughing. ठीक है? So what are the equipments we use for the preparation of soil? In that we have discussed about the plough, which are used in ancient times and 40 to 50 years ago. ठीक है ना? Nowadays the plough is not used. We all know that cultivator is used nowadays in every type of farm, in which we join it with the tractor. It saves our time, saves our labor. After that, what do? We sow our seeds in the field. We have also discussed that the seeds should be of a very good quality, so it gives better crop production. After that, we have to add manure and fertilizers. Clear? Manure and fertilizers to the field for its proper growth, because we know that if we grow same type of crop again and again in the same field, then it will takes up all the nutrients of the same kind. ठीक है ना बेटा? So to complete the requirement of the nutrient, we have to add manure or fertilizer. Clear? What is the difference between manure and fertilizer? We have discussed it. ठीक है ना? Manure is made in the factory, while sorry, fertilizers are made in the factory, while manure can be made in the farm or field or by the farmer. ठीक है ना बेटा? अच्छा, fertilizer does not produce any humus to the soil. We also discussed it. But manure provides humus to the soil. But the one disadvantage, or we can say less advantage, is manure is relatively less rich in plant nutrient. ठीक है ना? उसके अंदर जो nutrients है वो थोड़ा कम होते हैं, but still manure is best than fertilizers. Clear? We have also discussed the advantages of manure. After that we have discussed irrigation. What is irrigation? अगर हम regular interval पे
जो हम पानी देते हैं अपनी क्रॉप को, दैट इज़ नोन एज इरीगेशन। क्लियर। अब इरीगेशन के हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल सोर्स देखे थे, ट्रेडिशनल मेथड्स देखे थे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मोट, ठीक है ना, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चेन पम्प, धेकली, वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट रहट। द स्टूडेंट्स विच आर नियर कुरुक्षेत्र, देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड धरोहर, यू कैन सी रहट देयर, ठीक है ना, आउटसाइड धरोहर दिस सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर is made, so we can see that how rehat works, ठीक है ना, whenever you go or whenever you get a chance to go there you see it, ठीक है। इरिगेशन के बाद हमने देखा था कि आज मॉडर्न जो सिस्टम है इसके अंदर हम स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम, वाई वी यूज इट, बिकॉज इट विल save a lot of water which is wasted during irrigation, ठीक है। Next, what do? We have to protect our plant from weeds. Weeds are what? Weeds are the unwanted plants. कुछ ऐसे plants होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं लेकिन हमें कोई भी बेनिफिट नहीं देते, उल्टा हमें नुकसान देते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हम अपनी क्रॉप को देना चाहते हैं उसमें से काफ़ी न्यूट्रिएंट्स वो अपने लिए इस्तेमाल कर देते हैं और हमारा जो क्रॉप है, हमारा जो प्लांट है वो कमज़ोर रह जाता है। सो वी हैव टू रिमूव दीज वीड्स, ठीक है ना। Farmers can do it manually, or there is also a process called weedicides in which we spray different type of chemicals on the crop which do not harm the crop, but it will help us to remove the weeds. Clear. The last step is harvesting. Harvesting is what? Cutting off crop after it is matured. फसल जब तैयार हो जाती है, क्रॉप जब तैयार हो जाती है, टू हार्वेस्ट इट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हाउ डू वी डू दैट? वी डू इट विद सिकल मैनुअली, ठीक है ना, बट इफ डू इट बाय मशीन इट इज नोन एज कंबाइंड। नेक्स्ट, स्टोरेज, ये हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है ना। हमने कितनी मेहनत करी, हमने चावल अगर उगाया तो चावल उगाने के लिए वी हैव टू वर्क रेगुलरली 120 days, 4 months. After the hard work of 4 months, then the farmer gets the grain. ओके बेटा। सो इतने हार्ड वर्क के बाद अगर वो ख़राब हो जाए तो कितना बुरा लगता है। आज हम 2 घंटे लगा के अगर एक ड्राइंग भी बनाते हैं और उस ड्राइंग पे कोई पानी डाल दे तो हमें कितना गुस्सा आता है कि हमने इतनी मेहनत करी और ये ख़राब हो गई। इसी तरीके से जिस किसान ने इतनी मेहनत करके वो जो भी क्रॉप है वो उगाई है, अगर वो ख़राब हो जाए तो, ठीक है ना, अगर वो ख़राब ना हो, हमें उसे लॉन्गर टाइम तक सेव रखना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे सेफ रखना पड़ेगा। किससे? मॉइस्चर से। मॉइस्चर क्या होता है? हवा के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसे मॉइस्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मॉइस्चर कहते हैं। क्लियर। हमें उसे इंसेक्ट से बचाना होगा, रैट से बचाना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होगा, ठीक है ना। अगर इन सब से हम उसे बचा पाएँ then only we can say that our crop is safe. Clear. अच्छा, एक और बात, जो फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, जैसे अभी अभी गेहूं कटी है अगर, तो अगर हम उसे अच्छी तरह से सुखाए ना, अगर हम उसे अच्छी तरह से ड्राई ना करें और उसके अंदर कुछ मॉइस्चर रह जाए तो उसकी वजह से उसी के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं बेटा जो उसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर पेस्ट का अटैक होता है, बैक्टीरिया का अटैक होता है, फंजाई का अटैक होता है, फंगस का अटैक होता है, ठीक है। तो इसीलिए पुरानी जो फसल है वो तो हमें अच्छे से संभाल के रखनी ही है, उसी के साथ साथ जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्रॉप है, जो नई फसल अभी अभी आई है, उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई करके इन द प्रेजेंस ऑफ सन, सूरज के प्रेजेंस में, देन वी हैव टू स्टोर इट। क्लियर। तो स्टोरेज जो है वो हम घर पे तो आप सभी जानते ही हैं, हमारे घर पे एक टैंक होता है बहुत बड़ा, अनाज की टंकी भी हम उसे बोलते हैं, उसके अंदर हम रखते हैं। लेकिन बड़े लेवल पे जब हम देखते हैं तो उसको हम सिलोज में रखते हैं। सिलोज क्या होते हैं? ऐसे ये बड़े बड़े बीन्स बने होते हैं जिसके अंदर एयर का पैसेज नहीं होता। क्लियर। तो इसके अंदर हम जो हमारा ग्रेन्स है उनको स्टॉक रखते हैं, उसको स्टोर रखते हैं, और वेन एवर वी नीड इट, जब भी हमें वो चाहिए होता है तो वहाँ से हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। क्लियर बेटा। फार्मर क्या करता है? फार्मर जो है वो इन सब चीज़ों को, जो जूट के बैग होता है, ये हमने देखे भी होंगे, हमारे घर पे भी होते हैं, इनमें पैक कर देता है, और इनमें पैक करने के बाद उनको जो ग्रेनरीज होती हैं वहाँ पे
दे देता है। क्लियर? तो वहाँ पर हमको इसको पेस्ट से बचाना होता है, ठीक है ना। आपने घर में एक चीज़ देखी होगी कि जहाँ पर भी आप अपना गेहूँ या चावल ये सब चीज़ें स्टोर करते हो, तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो क्या करते हैं। ऐसा समझो आप कि ये हमारा टैंक है, तो वो क्या करेंगे, वो इतना टैंक को फिल कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ना नीम की लीव्स डाल देंगे, फिर थोड़ा सा टैंक को फिल करेंगे, फिर नीम की लीव्स डाल देंगे, फिर टैंक को फिल करेंगे, फिर यहाँ पे नीम की लीव्स डाल देंगे। ये जो नीम की लीव्स हैं, नीम लीव्स हैं, ये क्या करती हैं बेटा, ये हमारे ग्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं इंसेक्ट से। क्लियर? क्लियर? अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमें फूड जो है वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड से मिलता है, हमें फूड एनिमल से भी मिलता है। जैसे ये आपके सामने एक टेबल है, अगर आप इसमें मिल्क लिखो तो मिल्क हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, काओ, बफेलो, शीप, गॉड, ठीक है ना, शी कैमल, इन सब से हमें मिल्क मिलता है। अगर मैं यहाँ पे बटर लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे चीज़ लिखूँ, तो ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है बेटा? तो जिस तरीके से प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल है, तो बहुत पीपल जो होते हैं, बहुत जो लोग होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को भी पालते हैं। किस लिए? फूड के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से जी सके। क्लियर? हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है बेटा, कोस्टल एरियाज़ में आपके हमारे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो हमारे बीचेस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे हमारे फ़िशरमैन होते हैं जो फ़िशेस पकड़ते हैं और फिर उससे अपना लाइफ जो है वो सरवाइव करते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं रहते, हम उसके साथ साथ एनिमल्स को भी पालते हैं, उससे हम फूड लेते हैं। अब जैसे हमने देखा था ना कि क्रॉप प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेप्स थे, तो उसी टाइप से जो एनिमल्स होते हैं उनको रखने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनिमल्स को रखने के लिए हमें प्रॉपर एक जगह चाहिए, जैसे उनका घर हो या फिर हम फार्म में रखें, ठीक है ना। उनको हमें प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। शेल्टर मतलब जिससे वो सर्दी और गर्मी से बचे रहें। हमें उन्हें प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब वो बीमार होंगे तो उनको दवाई भी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब नॉर्मली जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, ठीक है ना, काव रखते हैं, बुफेलो रखते हैं। एक होगी, दो होगी, किसी के पास पांच होंगी। लेकिन इसी को जब हम बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं कि जैसे किसी ने 100 बफेलोस रखी हैं या फिर 50 काउज रखी हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं बेटा? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज व्हाट, when we take care of the animals for the food products in a large scale, on a large scale, it is known as animal husbandry. Clear? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन, इसके अंदर जितनी भी हमारी चीज़ें आई वो सभी हमने डिस्कस करी। सो हियर आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सीरीज इज completed. क्लियर बेटा? आफ्टर दैट व्हाट डू वी डू, हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पूरी वीडियोस देखने के बाद रीड करना है। जहाँ पर भी बीच में हमें ऐसा लगता है, ठीक है ना, कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या हमें रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगेन ओपन यूट्यूब, वॉच द वीडियो एंड अगेन रीड, ठीक है ना। आई अश्योर यू कि अगर आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखा है, देन आपको चैप्टर रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं फेस करनी पड़ेगी। क्लियर? अब बातें आती है एक्सरसाइज की, क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है ना। तो आजकल बच्चे क्या होते हैं, टीचर्स पे बहुत डिपेंड होते हैं कि टीचर्स हमें लिखवाएंगे, लिखवाना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए कि क्या हम उन क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं। और उसके बाद चैप्टर पढ़ने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि क्या चैप्टर में से हम इनका आंसर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आंसर तो चैप्टर में ही है। ठीक है बेटा? तो इसके आपको ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद क्या रिजल्ट आया, प्लीज़ आपको ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट। ठीक है? इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट वट एवर योर सजेशंस आर और वट एवर योर व्यूज़ आर, ठीक है ना, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।